Hello everyone, I am Ankur Raman, POC of Team CypherSync. I am going to take a second session of blockchain and I will discuss about the smart contracts and basic of solidity. Also, we will write smart contracts of grocery store later in video section. Let's start. First is what is smart contract and why we need smart contracts in blockchain. Basically, smart contracts are programs just like another programs or a set of instructions that executes or deployed in Ethereum blockchain and runs on it. And also these are self-executable. Why these are self-executable and what does it mean? Basically, these allow to there is no need of any intermediaries. That means uh, there is no need of any external person to enforce these smart contracts. Okay, these that's why these are called self-executable programs. To write smart contracts, we need a particular language which is Solidity. We will write smart contracts in Solidity, and I will discuss about the what is Solidity types, variables in Solidity, operators in Solidity, loops in Solidity, decision-making statements, strings, array, enums and struct, mapping, function, viv and pure, visibility modifier. Also, we will make a smart contract and write some code. First, uh, as we know, this is a programming language and this is a object-oriented programming language. Just like in object-oriented programming language, you can create objects or create classes like classes or make constructor this type. Okay, and why this need? Why only this language? Can we write smart contracts with another programming language, another OOPS language? Yes, you can. You can write smart contracts with C++, Python, and Java also. Then why we don't write smart contracts in this programming language? Because this causes many flaws, which are first is integration with Web3 and EtherJS. Web3 and EtherJS is basically JavaScript library, which helps you to integrate with front end and back end and to make Web3 pages. If you write a smart contracts in uh, another programming language instead of Solidity, you may causes some issue in connecting with Web3 pages or write Web3 code. And second is secure and auditable code. Solidity also provides you a strong security for your smart contract, which other programming language can't. And third is gas optimization and efficiency. Uh, what is gas optimization here? Gas optimization is basically when you deploy a smart contract in Ethereum. In a smart contract, there are many state variables used. For that is particular state variable and global variable, you must have to pay some amount of fee. Okay, that fee is called gas fee, and Solidity helps in decreasing that amount of fee. And also, it makes an efficient to run a smart contract in Ethereum. Basically, Solidity is a statically typed language. What is means mean by the statically typed language and dynamically typed language? Statically typed language are those language in which we you have to declare a data type of variable you want to use, and then you can assign a particular value to that variable. If you don't assign, if you don't mention or declare data type of variable, you may cause a compilation error, or you may have a compilation error. Okay, but in dynamically typed language, there is no need to declare any data type.
You directly write variable and then assign. You can assign value in that. Solidity has value type and reference type just like another programming language. Value type variables are those variables um, basically which store their own data. Own data means if you assign a particular value to a variable, then it directly assigned to it. Okay. If you want to pass these value to any function, then you have to pass by the value. And this is the list of value type data type. First is boolean, integer, fixed point numbers, address, and bytes. Also the enums. Boolean has two values. Either it will be true or false. And in integer, you can store any integer. If you want to store any unsigned integer, you can use uint as a syntax. If you want to store any signed integer, you can use int as a syntax. Third is fixed point numbers. Fixed point numbers you use when you want to store any decimal number or floating number. And the next is address. Basically, address has a fixed value, which is a 20 byte value. This is a smart contract address where the smart contract is deployed in Ethereum. Okay. Also, these are used when you have to pay or receive some ether from another smart contracts or another account. And the next is bytes. We will see. I will show you how to write these data type. Okay. The next is bytes. Byte just like a behaves just like string, but you these are static type. What does it mean by static type? You does not increase the size after the initialization of byte, but in a string you can increase the size after the initialization of the string. This is a fixed length of byte. This can be 1 to 32. This cannot exceed from 32 byte. And the next is enums. Enums are user-defined data types. What does it mean by user-defined data types? User-defined data types are those which data type a user can define by itself. And why these enums are used? If you want to restrict a particular variable for particular values, then you can use enums. I will show you. Okay, this is the enum syntax. You can write enum, then enum name, then the values you want to restrict this variable for. Then you can assign my enum to a particular value from this series or this sequence. Here it is written my enum. My enum is this the variable, and then it assigns a value gives this is. You can assign only one of these values. The next is reference type. Reference type variable stores the location of data, not the value, and that means where the data is kept in the memory. That reference is used for storing. Okay, and if you want to pass this variable into another function, you can use any reference for that. You can't pass any value for that. If you want to pass for value, you have to use index for that. Here is the list of the reference type variables, reference type data types. These are the array, string, struct, mapping.
The array syntax you can see here. Okay. Okay. If you want to code, just फिर थोड़ा हम कोड उसमें कर लेते हैं एटॉमिक साइड पर, इसको देख लेते हैं कैसे वर्क करते हैं और कैसे इनिशियलाइज होते हैं ये सारे रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप डेटा टाइप. ओके. ओपन remix side in Google first. Okay. This is ID which allows you to write smart contracts and deploys. From inside the contract folder, you can make any file from here. Create new file. I will make one file. First, you have to initialize license and the compiler version you want to use. Okay. From here, can copy you can copy paste from another file also. This denotes the compiler version from 7 से ऊपर एंड 9 के नीचे कंपाइलर वर्जन हम यूज करना चाहते हैं. ठीक है, उसमें कंपाइल होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट. एंड दिस इज द लाइसेंस विच यूज फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. और यहाँ पर ये रहा कंपाइलर वर्जन विच इज सेट हियर. कोई भी कंपाइलर वर्जन सेट कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से ऑटो कंपाइल भी लगा सकते हो. और यहाँ से ऑटो कंपाइल भी लगा सकते हो, जिससे कि जैसे ही कोड लिखो वो ऑटो कंपाइल हो जाए, बार बार कंपाइल करना ना पड़े. ठीक है. और यहाँ दिस इज द मेन डैशबोर्ड फ्रॉम वेयर यू कैन डिप्लॉय एनी कॉन्ट्रैक्ट. ओके. now from now you have to first initialize contract and then contract name. ओके. जैसे ही लिखा कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ डिप्लॉय का ऑप्शन आ गया. ठीक है. पहले हम इनिशियलाइज करेंगे, कोई भी इंटीजर इनिशियलाइज कर सकते हो यहाँ पर. जैसे नम इनिशियलाइज किया है 4 से. ठीक है. अब मेरे को देखना है यहाँ से कि कहाँ से शो होगा ये इंटीजर. ठीक है. प्रिंट करवाना है. प्रिंट करने के लिए यहाँ कोई अनदर फंक्शन नहीं होता, रन नहीं करना होता, डिप्लॉय करना होता है. डिप्लॉय करने के लिए हम यहाँ पर गेटर फंक्शन पब्लिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक गेटर फंक्शन क्रिएट कर देता है. ठीक है. जहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू इसकी क्या है. ओके. ये इन्वायरमेंट्स है बेसिकली. यहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो, बट मेन नेट नहीं यूज करना. ठीक है. लिनक्स वीएम कैन यूज कर सकते हो, वीएम मेन नेट नहीं यूज करना. ठीक है. if you have metamask, you can use injected provider metamask. These are the accounts basically which provides free ethers. Okay. For deployment, this is the gas fee. I have talked about that. Here you can set value in ether and very. Okay, ether is large value. Okay. uh, if you deploy, this is the deployed correctly. Here you can see the logs. Okay, inside this. Okay, if you open this, you have here is the show. Okay. num num वेरिएबल यहाँ पर शो हो रहा है. ठीक है. इसको कॉल करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? 4, जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है. ठीक है. अगर कोई स्ट्रिंग इनिशियलाइज करोगे, स्ट्रिंग नेम विथ NITP. ओके. अब मुझे देखना है ये कैसे प्रिंट हो रहा है. इसके लिए हम पब्लिक यूज करेंगे और इसको हर बार डिप्लॉय करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, हर बार कंपाइल हो रही है. ठीक है. यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर स्ट्रिंग देख सकते हो, नेम एंड आईडी हो गया. ठीक है. यहाँ पे लॉक्स भी आ रहे हैं. ठीक है. यहाँ से लॉक्स भी देख सकते हो कि कैसे कौन कौन से वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है. ठीक है. जैसे कोई भी एरे बनाना है. ठीक है. कोई भी एरे बनाना है. ये स्टैटिक टाइप एरे में बना रहा हूँ.
यहाँ पर थ्री साइज की, और पहले डेटा टाइप मैंने लिख दिया, फिर साइज लिख दिया कितने साइज का एरे मुझे लेना है, क्योंकि स्टैटिक टाइप में पहले साइज बताना होगा। फिर एरे नेम लिख दूंगा मैं, जो कि मैंने एरे लिया है यहाँ पर। एंड देन एलिमेंट्स ले लूंगा। एलिमेंट्स क्या लेना है मुझे, तीन लेना है, चार लेना है, दो लेना है। ऑल्सो हियर इज द पॉइंट इनसाइड दिस, चार पाँच आठ लेना है, ठीक है। और अगर देखना है तो इसको पब्लिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इसको डिप्लॉय कर दो यहाँ से। अब देखोगे तो यहाँ पर एरे, यहाँ पर एरे में यहाँ पे इनपुट क्यों देना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ। मान लिया मैंने फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट इंडेक्स क्या है, सिक्स है, क्योंकि जीरो फर्स्ट, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करता है। फर्स्ट जीरो है, सेकंड सिक्स है, एंड फर्स्ट सिक्स है, एंड देन सेकंड एट है, ठीक है। एंड देन स्ट्रक्ट एंड ओके। अब मान लो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्ट होता है क्या है, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। स्ट्रक्ट नहीं बताया ना क्या होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली फर्स्ट, ओके, आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर लेटर, बिकॉज फिर वही हो जाएगा। सीक्वेंस से अभी चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएबल्स इन सॉलिडिटी, ठीक है। फर्स्ट है स्टेट वेरिएबल, सेकंड इज लोकल वेरिएबल, थर्ड इज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो स्टेट वेरिएबल्स इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं एट द टॉप पर, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स परमानेंट ब्लॉकचेन में स्टोर होते हैं। एंड लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं और इनसाइड द फंक्शन एक्सेस कर सकते हो, बट आउटसाइड द फंक्शन नहीं एक्सेस कर सकते हो। बट इनके लिए और हाँ, इनके लिए कोई भी गैस फी नहीं लगती है, ठीक है, लोकल वेरिएबल्स के लिए। एंड द थर्ड इज ग्लोबल वेरिएबल। फॉर ग्लोबल वेरिएबल, if you want to access or call another smart contract by any address of that smart contract, you have to use global variable. Address is the global data type, okay. For any global variable, you must have to use global data type, okay. And next is solidly operators. I hope you all know about operators, how operators work, because these are used to perform different operations between operand. First is arithmetic operator, second is relational, third is logical, fourth is bitwise, fifth is assignment, sixth is conditional. Okay, here's the addition, multiplication. You all know about these operations. Also modulus, increment, decrement, increment increase the value by one, decrement decrease the value by one. Okay, and the next is relational operators. How relational operators work? Basically, it checks for two operand. If those operands satisfy the condition, then it will so as per their relation. As first is equal, if the two values equal, then it returns true. Okay. If the two values does not equal, then it returns true. If first is greater, then it returns true. If not greater, then it returns false. If first value is less than, then it returns true. And the next is greater than or equal to. If the first value is greater than or equal, then it returns true, as per, and so on. And the next is logical operators. Logical operators also checks a particular condition, okay, for between two operands. If logical and between two operands are written, it checks for both condition. If both condition are true, then it returns true. If either of the condition is false, then it returns false. And the next is or, logical or. Logical or, if either of the condition is true, then it returns true.
Logical not if the condition is true, then it returns false. If the condition is false, then it returns true. And the next is bitwise operators. Bitwise operators basically deals with bitwise values. Within bits, you can say that bitwise and, bitwise not, left shift, right shift. As per another programming language, here in Solitary also works as same. Assignment operators used for assignments. These assign the values for a variable and or any other another value. And the next is loops. Why loops is used? Okay. First question arises: why loops are used in any programming language? If you want to execute a set of instruction of block for a particular condition, until the condition does not met, you want to execute uh, that particular set of instruction or block infinitely, then loop enters there. It checks condition first. If the condition does not met, then the set of instruction execute and going to be executed, and so on, so on, so on until the condition does not met, which is written for the loop. Also, do while loop work as same as while loop, but here's the minor difference in do while loop, which is this executes uh, this will execute at least one time, because it checks after the execution. It checks condition after the execution of block. First it executes, then it checks condition. That means if the condition does not satisfy, but it will execute, it has executed at least one time. And the next is for loop. For loop also works as similar as while loop. In here initialization is done inside the for, and then test condition, then iteration statement. Iteration statement here shows the how the condition is going to be. Okay, and then the condition or statement set of instruction is going to be executed until the condition is not fulfilled. Until the condition is fulfilled. Next is decision making statement. ओके, आई विल शो यू द ओके, ठीक है, कोड पे चलते हैं फिर, ठीक है, लुप्स के लिए कोड पे चलते हैं, ठीक है, फिर रिमिक्स आईडी पर चलते हैं, फॉर लुप देखते हैं पहले, फिर यहाँ पर यू आई एन टी यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे, आई लिख देंगे, वन लिख देंगे, एंड यहाँ पर होगा कंडीशन। कंडीशन क्या है? 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। देन आइटरेशन स्टेटमेंट लिखेंगे कि यहाँ पर जो आइटरेशन है वो कैसे जाएगा, विल बी गोइंग ऑन, हाउ इट विल बी गोइंग ऑन, एंड देन यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शन का। कैसे होगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू आई। ओके, यहाँ पर सम यूज कर सकते हो, सम इक्वल टू 0, but this can cause an error. You have to use a function for this. Function it execute, okay, then it will be public and return
uint 256. Inside this you can use this loop, and then you can return what you want to return, sum from here. Okay, then you can deploy here from here. You can see that execute function here. Okay, first when you execute, okay, we will write the here public because I want to get the value of the sum. Okay, here you can deploy and then see here. ठीक है, यहाँ से देखो सम की वैल्यू इनिशियल क्या है, 0। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेंगे तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्यों, 5 बार ये सम किया है। पहले 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, देन 5 होगा। ओके, 5 नहीं होगा, 4 तक होगा। ठीक है, 1 2 3 4 तक चलेगा। ठीक है, 4 तक सम कितना हो रहा है, 10 ही हो रहा है। ठीक है, ऐसे लूप्स वर्क करते हैं। ठीक है, और ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो, फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा क्योंकि बाहर से सेट नहीं कर सकते हो किसी भी स्टेट वेरिएबल को, इसलिए फंक्शन से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, and the next is decision making statements. These are if else statement. It checks for a particular condition. If the condition does not satisfy, inside this set of instruction does not going to be executed. If the condition met, then block or set of instruction executed inside this. Also, if else statement, it checks for first condition. If the first condition met, then the first block is going to be executed, and if first condition does not met, then it will be going to execute the second block, because here any condition does not specify. If else statements also work as if else. First condition checks if if this does not met, then checks for second condition. If this also not met, then it will be going to for third condition, because here is there is no, because यहाँ पर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, लिखी नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, and the next is strings and solidity, how strings work and how we can initialize strings, also how we can set the values of strings by function और indirectly in state variables. ओके, ठीक है, फिर कोड रेमिक्स आईडी पर चलते हैं और सेट करते हैं वेरिएबल्स को। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी कर देता हूँ, फिर स्ट्रिंग्स देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया है, बट अब देखते हैं स्ट्रिंग को यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, और कैसे सेट करेंगे स्ट्रिंग को, फंक्शन से। ठीक है, फंक्शन सेट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर सेट स्ट्रिंग लिखो, यहाँ पर कोई पैरामीटर पास करना नहीं है मुझे, यहाँ पर इसे पब्लिक कर दो क्योंकि मुझे एज अ गेट चाहिए फंक्शन, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि फंक्शन कैसे चल रहा है। एंड देन रिटर्न, ओके, क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग मेमोरी। बेसिकली व्हाई वी यूज स्ट्रिंग मेमोरी हियर, बिकॉज स्ट्रिंग्स ब्लॉकचेन में स्टोर होते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन मेमोरी में, और मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है क्योंकि अभी कंपाइलेशन ही चल रहा है। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्पेसिफाई अ मेमोरी दैट, जिससे कि वो सिस्टम के मेमोरी में भी सेव हो जाए फॉर ए टेम्परेरी पर्पस। ओके, ठीक है, यहाँ से मैं स्ट्रिंग को, कहाँ गया स्ट्रिंग, ठीक है, नेम को चेंज करना है मुझे, नेम को मैं चेंज कर रहा हूँ
अंकुर। ओके ठीक है, पहले मैं कुछ और सेट कर देता हूँ। NITP था, ठीक है। अब मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा नेम को, ठीक है। अब हम डिप्लॉय करते हैं इसको, पहले ये दोनों काट देते हैं। ओके ठीक है, यहाँ से पहले नेम क्या है, NITP है, ठीक है। सेट स्ट्रिंग करने के बाद क्या है नेम, यहाँ पे अंकुर हो गया, ठीक है, जो कि मैंने सेट किया था फंक्शन से, ठीक है। यहाँ से ऐसे सेट कर सकता हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग फंक्शन। And the next is array. How array work and how arrays initialize, how I can access the particular element. I have told about that. Okay. Here is the static array. How you can define dynamic array. You can use here, but no need to specify size because this is dynamic type array. Okay. Okay. If you want to set particular values in the array, you must have to use a function to set values. Set a, you have to public it and then return, because you have to, I don't want to return any value. Okay, set a, then you can write or push a dot push 1. Okay, then a dot push 2. Okay, अब डिप्लॉय करो इसको। डिप्लॉय वाला ये है, ठीक है। अब मैं पहले क्या है, पहले ही सेट कर दी हूँ, ठीक है। एक्सेस कौन सा करना है, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है मुझे, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट 2 है, ठीक है। तो पहले मैंने 1 किया है, दूसरा 2 है। अगर मैं कोई और इंडेक्स कर दूं, 4 कर दूं, तो ये कुछ नहीं देगा, 0 देगा, ठीक है। लास्ट वाला ठीक है, लॉग में देख सकते हो कि इसने ट्रांजेक्शन रिवर्ट कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि मैं स्कोप के बाहर जा रहा हूँ, इंडेक्स के बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सेस भी हो गया। अब नेक्स्ट इज एनएम सिन सॉलिडिटी। मैंने डिस्कस किया हुआ है, दीज आर बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। कोड पर चलते हैं, कैसे सिंटैक्स होता है, कैसे वर्क करते हैं एनएम्स। एनएम्स को बेसिकली किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेट करने के लिए यूज होता है। यार यू कैन यूज एनएम एज अ डेटा टाइप and enum name you can use enum name, and inside this you can write those values you want to restrict for this enum name. I can write a name, I can't write because name already I have taken. Okay, CSE, EC, electrical and mechanical. Okay, I have restrict this for, and then to set any value from these values, you have to write a function to set value enum name, where you have to write public and then returns for what, enum name data type. You can returns from here what, enum name dot CSE, ठीक है। मैंने यहाँ पर CSE कर दिया। पर okay, you have to
write here pure because why we write pure here I will tell you later in later section में पीपीटी में बाद में डिस्कस किया मैंने, ठीक है। बाद में प्योर कैसे कहाँ से आते हैं देखते हैं, ठीक है। इसको अब डिप्लॉय करते हैं हम एंड देन हियर इज सेट एनम नेम एंड ठीक है। मुझे इसे देखना है क्या मैं पब्लिक कर सकता हूँ इसे, ठीक है। इसे पब्लिक नहीं कर सकते, सिर्फ सेट कर सकते हो। यूआईडी 0 के लिए सेट हो गया है, फॉर 0 इंडेक्स के लिए सेट हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर इसको कर दूं इसी के लिए have to deploy again then set a name, it has the 1, okay, for one index 0 1 second and third index रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। and then next is mapping in solidity, how mapping can be done in solidity। मैपिंग बस मैपिंग यूज किया जाता है बेसिकली मैप करने के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू को किसी अनदर वैल्यू के लिए। basically these work as a key value pair, okay। how we can map one value to another value, we can see in code, okay। nm तक हो गया है, ठीक है। nm को भी कर सकता हूँ मैं। next is mapping, how mapping is done। for mapping you can define mapping and then here you have to mention a key and then value and then mapping name just like m name, okay। Here is this defined, here you can write function for mapping to set values। here is the result name and then it is used how you can how it will be going to be, यहाँ पर इनिशियलाइज किया गया है, ठीक है, मैपिंग को। we will do it later too, okay। next is function solidity, how you can write I have already seen the function how you can write syntax and how you can uh, perform operation or write setup instruction inside the function। I have already told about that। here is the scope, I will tell about you later about what is the scope and how why you write a scope। function are basically two types which are view and second is pure function। so in view function why we use view अगर व्यू अगर किसी फंक्शन को व्यू से डिफाइन किया गया है दैट मीन्स कि स्टेट वेरिएबल्स को सिर्फ रीड कर सकते हो इनसाइड द फंक्शन बट यू कांट अल्टर दैट स्टेट वेरिएबल, उसको चेंज नहीं कर सकते, कोई और वैल्यू उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। और व्यू यहाँ पर लिख सकते हो फंक्शन में अगर व्यू से डिफाइन करना है तो। प्योर फंक्शन में यू इन प्योर फंक्शन you also can't read that state variable, अगर रीड नहीं कर सकते तो चेंज भी नहीं कर सकते स्टेट वेरिएबल को। नेक्स्ट इज विजिबिलिटी मॉडिफायर, हाउ विजिबिलिटी मॉडिफायर्स work and what is this। visibility modifiers are external public internal private I have to, okay यहाँ पर जो स्कोप था ना यहाँ पर जो स्कोप था ना वो यही है, विजिबिलिटी मॉडिफायर ही स्कोप है। ये डिफाइन करता है कि जो फंक्शन है वो कहाँ तक विजिबल है। external if you have defined any function with external then any another smart contract can use that function or can call this function, okay। next is public अगर कोई फंक्शन पब्लिक से डिफाइन किया गया है इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ऑल्सो
गेटर फंक्शन इज क्रिएटेड फॉर पब्लिक। आई ये हम देख चुके हैं कि कैसे गेटर फंक्शन क्रिएट होता है पब्लिक में, पब्लिक फंक्शन बनाने से। और कोई भी स्टेट वेरिएबल भी अगर पब्लिक बना रहे हो तब भी वो एक गेटर फंक्शन दे देता है। एंड द नेक्स्ट इज इंटरनल। इंटरनल अगर किसी फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, इसका मतलब वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इनसाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन एक्सेस इन डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। बट अगर किसी फंक्शन को प्राइवेट से इनिशियलाइज किया गया है, मतलब कि उसको डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट में तुम एक्सेस नहीं कर सकते, बट इनसाइड द कॉन्ट्रैक्ट यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, हम अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, ग्रोसरी स्टोर वाला कैसे हम उसको बनाते हैं। फाइल क्रिएट करेंगे ग्रोसरी स्टोर डॉट सॉल्व। और अब क्या करना है, मुझे कंपाइलर वर्जन स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है, एंड लाइसेंस। ओके, ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दिया। फिर क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब इस पे आ जाओ। अब क्या करना है, अच्छा ठीक है, पहले ये देखो ग्रोसरी स्टोर में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उनके कुछ प्राइजेस होंगे, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, कुछ नाम होगा उनका, ठीक है। तो ये अलग देखो, नाम के लिए मुझे, नेम के लिए मुझे स्ट्रिंग लगेगा, एंड प्राइस के लिए मुझे इंटीजर लगेगा। तो ये सब एक साथ में किसमें स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रक्ट में। ओके, तो मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ प्रोडक्ट नाम से। ओके, फिर ऑल्सो देर विल बी मैनी प्रोडक्ट। ओके, तो हर एक प्रोडक्ट को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, उनकी आईडी से, ठीक है। तो आईडी भी मुझे स्पेसिफाई करना होगा, आईडी UINT क्वांटिटी, ठीक है। देन क्या देखना है मुझे, स्ट्रिंग नेम देखना पड़ेगा मुझे, नेम क्या है। देन प्राइस देखना पड़ेगा, क्या प्राइस है उसका, ठीक है। अब एक मैप क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए मुझे ट्रैक करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितना बचा है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, आईडी से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं मैपिंग बना सकता हूँ, ठीक है। मैपिंग ऐसे बनाते हैं कि पहले की होगी, ठीक है, तो की मुझे क्या रखना है, आईडी ही रखना है, ठीक है। तो आईडी डिनोट कर देंगे 256 से। देन ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ प्रोडक्ट से मैं मैप कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट हो गया, और इसको पब्लिक भी बना देते हैं हम साथ में, जिससे कि हम देख सकें कि कैसे मैप वर्क कर रहा है। एंड देन अब क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, अच्छा अब क्या स्पेसिफाई करना होगा मुझे, फर्स्ट मैं एड्रेस दूंगा, ठीक है, ओनर को यहाँ पर, ठीक है। ओनर जो होगा, मैसेज डॉट सेंडर ओनर जो होगा, इसको पब्लिक में बना देता हूँ, ठीक है, जिससे एक गेटर फंक्शन बन जाए इसका, और हम देख सके कौन ओनर है इसका, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन लगाता हूँ मॉडिफायर से। मॉडिफायर क्या वर्क करता है, ये बेसिकली एक फंक्शन ही होते हैं, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ये किसके लिए रिस्ट्रिक्ट करेगा, ओनर के लिए।
ओनर की अगर कंडीशन सेटिस्फाई तभी ओनर इसको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो क्या होंगे इसके, ऐसे करो, देन मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेंगी। इसमें क्या कंडीशन होंगी, इफ ओनर इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर अगर है तब ठीक है, अगर नहीं है देन यू आर नॉट ओनर। ओके, also I have to specify this, okay, return from this function, and now I have to specify constructor to initialize owner। ओनर को इनिशियलाइज कर देंगे अब मैसेज डॉट सेंडर से, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली। अब क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा ग्रोसरी स्टोर में, जो कि सिर्फ क्या कौन कर सकता है, ओनर ही कर सकता है। ऐड प्रोडक्ट, ओके। प्रोडक्ट के लिए मुझे पैरामीटर्स पास करने होंगे, आईडी चाहिए एक जो कि मैं ऐसे ले सकता हूँ, और मुझे और क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, यूएनटी क्वांटिटी चाहिए, और क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, और ऑल्सो प्राइस इन ईथर चाहिए मुझे, प्राइस, बिकॉज यहाँ पर वेई में भी दे सकता है कोई, ठीक है, बट मैं ईथर्स में लूँगा। अगर कोई वेई में देता है तो क्या होता है कि बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो ऐसे दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं ईथर में ले रहा हूँ, जिससे कि मेजर चेंजेस हो आपको दिखे भी कि क्या चेंजेस हो रहा है, ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर मेमोरी भी यूज करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग को मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। नेम और कुछ बचा, क्वांटिटी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये होगा ओनली ओनर फंक्शन होगा, ओके। पब्लिक भी होगा, ठीक है, ये पब्लिक भी होगा, एंड इनसाइड दिस वी कैन राइट लॉजिक। पहला लॉजिक क्या होगा, ठीक है, कि जो आईडी है वो मैच कर रही प्रोडक्ट से कि नहीं, ठीक है, समझ गए। तो पहली आईडी अगर ये है तो हम कैसे चेक करेंगे, मैप से प्रोडक्ट डॉट आईडी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, पहले मैं प्रोडक्ट वो कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट और आईडी, इनसाइड दिस वी कैन राइट प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद मैं कंडीशन लिखता हूँ, कौन कौन से कंडीशन लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हो, आईडी किसके लिए चाहिए, आईडी ये यूज कर सकते हो, और तो आईडी अगर ये है, क्वांटिटी कौन सी यूज कर सकते हो, क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी ये यूज कर सकते हो। देन मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए ना, नेम के लिए नेम चाहिए, ठीक है। उसके लिए उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ओनर चाहिए, ठीक है। नहीं ओनर नहीं, मुझे प्राइस चाहिए, प्राइस इन ईथर, ओके। तो मैं क्या दे सकता हूँ, प्राइस इन ईथर, यहाँ पर बेसिकली चेंज है ईथर का, ओके। मुझे पहले
आईडी चेक करना पड़ेगा। तो आईडी चेक करने के लिए प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे मैप है, यहाँ पे मैं ये आईडी पुट करूँगा। ठीक है, अगर कोई एग्जिस्ट करता है देन ठीक है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, नॉट एग्जिस्ट। ओके, सेकेंड क्या होगा कि जो प्राइसिंग मेथड है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मस्ट बी, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। किसी प्रोडक्ट का 0 कैसे हो सकता है? यहाँ पर आईडी लो या ना लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐड करना है बेसिकली। तो ऐड तो पहले वाले में भी हो सकता है ना, अगर नहीं है तब भी ऐड हो जाएगा, और वो है तब भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये लो या ना लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आईडी से चेक करने पे। क्वांटिटी से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट हैव एनी must be any quantity, it must have a quantity। ये एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि इसको परचेस कर रहे हो पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिक इसको एक्सेस या फिर खरीद सकती है ना, बाय कर सकती है ना। तो परचेस करने के लिए मैं एक परचेस फंक्शन बनाऊंगा पब्लिक के लिए। तो पब्लिक किससे लेगी, इस आईडी को देगी। ठीक है, basically it will provide an id and quantity, how much quantity he needed। तो क्वांटिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी यहाँ पे डिसाइड कर दूंगा मैं। क्वांटिटी कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, पब्लिक, एंड देन पेबल भी होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन पेबल भी होना चाहिए क्योंकि पब्लिक पे करेगी इसको। ठीक है, क्योंकि परचेस कर रहा है तो बेसिक बात है कि ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा क्वांटिटी ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हूँ मैं, यहाँ पे ना। हाँ ठीक है, इसमें रहा। अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो खरीद रहा है उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक प्रोडक्ट का इंस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट इंस्टेंट, also I have to use here storage because I have to track that particular। ये स्टोरेज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगर इसने एक्सेस अमाउंट दिया तो मुझे इसको ट्रैक करना पड़ेगा कि कितना एक्सेस दिया है। ठीक है, इसलिए मैं सिस्टम के स्टोरेज में इसे अभी के लिए स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रैक करने के लिए अभी से प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट आईडी होगा, ठीक है, उससे मैं इसमें पहले स्टोर कर लूँगा जो भी आईडी इसने दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी से, और यहाँ से मैं पहले एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाऊँगा पहले कि इफ़ प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ओके, is greater than message value or not। If it is okay, it must have the message dot value। मैसेज डॉट वैल्यू जस्ट मेन कि कितने इधर ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ठीक है, वो जस्ट एक वैल्यू ही है, प्राइस प्रोडक्ट और डॉट प्राइस से अगर ज़्यादा है, प्रोडक्ट ऑल्सो प्रोडक्ट प्राइस
क्वांटिटी पर भी डिपेंड करेगा ना कि एक ओके यू एन टी प्राइस okay you how much quantity you want quantity into product dot price okay price of product ये कर देता हूँ मैं ठीक है price of product से मैसेज डॉट वैल्यू बढ़ा है या नहीं बढ़ा मतलब ट्रांजेक्शन उससे ज़्यादा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं देन रिक्वायर्ड से ठीक है नॉट efficient ओके अब क्या करना है रिक्वायर और कोई कंडीशन लगा नहीं सकता मैं वैसे ठीक है अब मुझे क्या करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ठीक है और पहले क्वांटिटी मुझे घटानी पड़ेगी ठीक है और फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पर मुझे 1 ईथर भी करना पड़ेगा क्या अच्छा यहाँ पर मुझे जो ये प्राइस है यूएनटी प्राइस इन व्हीकल से पहले इज इक्वल टू 1 प्राइस इन ईथर ओके इनटू 1 ईथर ओके और यहाँ पर प्राइस इन बे डाल दो ओके अब सही है अब क्या करना है तुम्हें पहले क्वांटिटी घटानी पड़ेगी तुम्हें प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी माइनस करना पड़ेगा किससे प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी अच्छा पहले मुझे क्वांटिटी भी देखना पड़ेगा अच्छा ठीक है यहाँ पर क्वांटिटी भी देखना पड़ेगा कि ज़्यादा है या कम है ओके तो हम यहाँ से प्रोडक्ट की क्वांटिटी देख सकते हैं प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी जो हम मांग रहे हैं नीडेड से अगर ज़्यादा है तभी हम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे नॉट क्वांटिटी स्टॉक आउट लिख सकते हैं या तो फिर ओके प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी अच्छा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्वांटिटी से ओके देन मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको पे कर दूंगा पे बर इसको मुझे पे करना पड़ेगा ओनर को ठीक है ओनर डॉट ट्रांसफर मैसेज डॉट वैल्यू जितनी है ठीक है ये मुझे पे करना पड़ेगा ठीक है और एक बात है वो क्या है यहाँ पर मुझे इसको जैसे ट्रैक भी करना है इसका कि एक्सेस अमाउंट कितना हुआ है ठीक है तो मुझे इसमें देना भी पड़ेगा इसको तो एक्सेस अमाउंट के लिए मुझे ट्रैक करना है तो एक मुझे मैप क्रिएट करना पड़ेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर एक मैप भी क्रिएट करूँगा
जो कि इसके एड्रेस से मैच करना, मैं एड्रेस से मैप करूँगा कि इस एड्रेस में इतना पैसा, इतना एक्सेस अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट जो होगा यूआईएनटी में होगा, पब्लिक कर सकता हूँ मैं, एंड देन एक्सेस पेमेंट लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके, एक्सेस पेमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इफ अगर कुछ एक्सेस पेमेंट है, एक्सेस पेमेंट कैसे मुझे पता चलेगा कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से ग्रेटर है अगर मैसेज डॉट वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें को पास कर दूंगा एक्सेस अमाउंट में एक्सेस पेमेंट मैप में मैं एड्रेस पास कर दूंगा, और एड्रेस किसका पास करूंगा, जो कि सेंडर है। ठीक है, और इसमें क्या वैल्यू रखूंगा मैं, अच्छा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कम है, मैसेज डॉट वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, मैसेज डॉट वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैसेज डॉट वैल्यू जो है उसमें से प्राइस ऑफ प्रोडक्ट घटा दूंगा, जिससे जो एक्सेस होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आएगा, अच्छा, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज, ओके, दिस इज द मिस्टेक। ओके, ओके, अब मुझे अगर एक्सेस अमाउंट वापस चाहिए, तब मुझे इसके लिए एक फंक्शन चाहिए। अभी के लिए मैं देखता हूँ कि ये फंक्शन चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं रन पे जाता हूँ। ठीक है, और डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय हो गया। ठीक है, अब मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ID1, यहाँ पे पेन, और प्राइस मैंने रखा है 3, ऑल्सो इन ईथर। ओके, प्राइस 3 रखा है, नेम रखा है, अच्छा क्वांटिटी कितनी है, 5 मैंने ले लिया, नेम रख दिया पेन। ठीक है, देन देखो एग्जीक्यूट हो गया ये। ठीक है, अब मुझे अगर परचेस करना है, ठीक है, तो परचेस यही तो करेगा नहीं, कोई दूसरा करेगा। ठीक है, ओनर तो करेगा नहीं, दूसरा करेगा। मुझे वो आईडी देगा उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, मान लो 1 दिया, वो क्वांटिटी दिया 2, तो 2 के लिए मुझे कितना, एक का 3 है, एक का प्राइस, 2 के लिए कितना चाहिए, तो मुझे 6 चाहिए। ठीक है, और 6 चाहिए। ठीक है, अब मैं 6 इसमें इधर पे करूँगा। ठीक है, यहाँ से 6 इधर पे करूँगा यहाँ से, और मैं इससे ज़्यादा पे कर सकता हूँ। ठीक है, 8 पे कर सकता हूँ। ठीक है, 8 पे किया, हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक्सेस जानना है, कितना एक्सेस हुआ। देखो 8 यहाँ से गए, यहाँ पर पड़ गए। ठीक है, 8 ही गए हूँ, कुछ 0.99 समथिंग गैस में करता है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ गया है। ठीक है, अब मुझे जानना है कि एक्सेस कितना हुआ, मैंने एक्सेस कितना दे दिया है। तो मैं इसका एड्रेस डालूंगा, एक्सेस अमाउंट ये दे देगा कि 2 ईथर तुमने ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, अब मुझे वो ईथर वापस लेना है। ठीक है, एक्सेस वाले ईथर वापस लेना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक्सेस रिफंड, मैं रिफंड वाला फंक्शन बना दूंगा,
और रिफंड के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एड्रेस पास कर दूंगा क्योंकि मुझे एड्रेस से लेना है। एड्रेस, और एड्रेस ऐसे लूँगा, पब्लिक चाहिए मुझे, और ये भी पेबल चाहिए मुझे, ठीक है। पेबल ओनली ओनर कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ ओनर ही पे कर सकता है ना, ओनर ही रिफंड कर सकता है ना। तो मैं पहले चेक करूँगा एक्सेस पेमेंट वाले मैप में ये इस एड्रेस को, कि मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। मान लो मैंने स्टोर किया एक्सेस, ओके। अब मुझे एक्सेस वाला अमाउंट रिफंड करना है तो मैं क्या करूँगा, पेबल, अच्छा जस्ट लाइक अगर ये जीरो है, ठीक है, रिक्वायर एक्सेस इज जीरो इज इक्वल टू, मैं अगर जीरो है, ठीक है, अगर लेस देन जीरो या जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो क्या ही होगा, ठीक है, नो अमाउंट टू रिफंड, ठीक है। इसको मुझे ग्रेटर करना पड़ेगा वैसे, ठीक है, अगर ग्रेटर नहीं है तब मैं कह दूंगा नो अमाउंट टू रिफंड, ठीक है, कोई भी अमाउंट रिफंड के लिए नहीं बचा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं कर सकता हूँ रिक्वायर की अगर मैसेज डॉट वैल्यू जो ओनर है उसके एक्सेस के बराबर नहीं है पेमेंट, अगर और वी कैन राइट लेस अमाउंट, ओके। नाउ कंडीशन सेटिस्फाई अगर है तो मैं पे कर दूंगा इसको। मैं कहाँ पे मुझे भेजना है, उसका एड्रेस है, ठीक है, और कितना भेजना है, जितना एक्सेस अमाउंट, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ मैसेज डॉट वैल्यू भेज दो, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिप्लॉय करूँ, ठीक है, मैं पहले वाले से ही डिप्लॉय करता हूँ, C4 से करता हूँ, ठीक है। C4 दीज आर बेसिकली अकाउंट, ओके। पहले मैं इसमें फिल करता हूँ, फर्स्ट आईडी दी है मैंने, देन क्वांटिटी मैंने 5 रखा है, और प्राइस रखा है मैंने 2, एंड नेम रखा है मैंने पेन, ओके। ट्रांजेक्शन कर दिया मैंने, इसको रख दिया। अब मुझे परचेस करना है, ठीक है, परचेस कोई दूसरा करेगा, C4 के अलावा B2 मान लो परचेस किया, ठीक है, B2 ने परचेस किया, आईडी डालेगा 1, और वो उसको क्वांटिटी चाहिए 3 पेन है, एक कितने का है, 2 का है, तो 3 कितने के होंगे, 6 के होंगे। अब मैं अमाउंट पे करूँगा, मान लो कितना, 8 ही पे किया मैंने जस्ट, ओके, ओके 8 मैंने पे किया, ठीक है, मैं 8 पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक्सेस है, ठीक है, तो इस कितना एक्सेस है ये जानने के लिए मैं इस पे जाऊँगा, 2 इधर ज़्यादा है, ठीक है, 2 इधर ज़्यादा है। अब क्या करेगा ओनर, ओनर के पास गए हैं तो ओनर क्या कर सकता है, पे कर सकता है, कितना, 2 इधर ज़्यादा है तो 2 इधर रिफंड करेगा, ठीक है। किस एड्रेस को, ये इस एड्रेस को फंड करेगा, ठीक है। ओके, हमने शायद कहीं पर मिस्टेक करी होगा, हाँ, यहाँ पर
जो एक्सेस पेमेंट है उसको हमें मैप में जीरो भी करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको फिर से डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। मैं C4 से कर रहा हूँ, ठीक है, C4 से ही डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले प्रोडक्ट ऐड करेंगे हम, ID 1 देते हैं, फिर क्वांटिटी 5 तक देते हैं, प्राइस कर देते हैं 2 कर देते हैं प्राइस, एंड देन प्रोडक्ट नेम पेन रख देते हैं, ठीक है। अब कोई दूसरा पर्सन, ठीक है, इसको बाय करना चाहता है, ठीक है, तो आईडी देगा उस प्रोडक्ट की एंड क्वांटिटी देगा कितना लेना चाहता है। तो जस्ट मैं 3 चाहता हूँ, ठीक है, 5 क्वांटिटी है, 3 लेना चाहता हूँ, ठीक है। और पर प्रोडक्ट प्राइस कितना है, 2 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा, 6 या फिर 6 से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो, मैं 9 कर रहा हूँ, ठीक है, 9 कर रहा हूँ। अगर एक्सेस होगा तो मैं फिर उससे रिफंड करवा सकता हूँ ना ओनर से, ठीक है। 9 मैंने दे दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने इस अकाउंट का एड्रेस ले लो, यहाँ से कॉपी कर लो, और यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कितना एक्सेस अमाउंट दिया है तुमने, 3, ठीक है। 6 था, मैंने 9 दिए थे, तो 3 ही था, ज़्यादा पेमेंट कर दिया मैंने। तब अब इसको अगर मुझे रिफ़ंड चाहिए तो रिफ़ंड के लिए एड्रेस डालोगे और ओनर यहाँ पर सेट करोगे, क्योंकि ओनर ही रिफ़ंड कर सकता है इसको, इस पर्टिकुलर एड्रेस को, ठीक है। Here is the mistake. What is the mistake? Okay, okay. I have not set the value of ether here. Okay, 3. Okay, I have to do the value. Okay, now it will be work. Okay, now it's work. कितने वैल्यू पेमेंट करा गया है, 3 ether. It shows in V because V is the smallest value here. Okay, so it's work fine. This contract will work very well. And from here you can check the products for ID. This is the product, okay. You can add many products in this, okay. So यहीं पर हम अभी एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आप देखोगे कि इसको हार्ड हेड पे कैसे हम डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, VS कोड में। उसके लिए भी लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। पहले इसकी ABI चाहिए, ABI उसमें डालोगे, फिर हेड हेड कनेक्शन करोगे, एंड देन उसमें डिप्लॉय होगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। तब तक के कॉन्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस करते रहो, और सॉलिडिटी ज़्यादा कठिन नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही है। ठीक है, थैंक यू फिर।